Hello everyone, in this lecture we are going to discuss about the quartiles. Earlier in my two lectures I have discussed what are quartiles and how can you determine quartiles for individual series as well as for discrete series. Now in this lecture I will discuss how can you determine quartiles for continuous series. Now what are I can also say that this is the frequency distributed data with class intervals. As you can see on the screen, here I have taken an example. Here there is some kind of data. In it the variable is x and f is the frequency, and variable x, you can see that variable is present in the form of a range or in the form of a class interval, that is 0 to 10, 0 to 7. Suppose you are recording the marks of the students which they have obtained in their class test. So suppose there are 3 number of students who have obtained marks 0 to 7. 4 number of students are there who have obtained marks from 7 to 14. There are 7 number of students who have obtained marks 14 to 21. When you express data in that form, that is in the form of a class interval, here all the numbers are included in it. Suppose here you can see that 0 to 7 all the numbers are there. After 7 in the next class are there 7 to 14. So such type of data is called continuous data. And if such type of data is given to you, then how can you determine quartiles? I am going to discuss all that. जैसे आपने लास्ट टाइम किया था, योर फर्स्ट टास्क, अगर आपको कोई भी डाटा दिया गया है, दैट मे बी इन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज, किसी भी टाइप का आपको डाटा दिया गया है, सबसे पहले आपको उसको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, हियर द डाटा दैट आई हैव टेकन इज ऑलरेडी इज इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में ना होता तो पहले से हमें अरेंज करना पड़ता. ओके, तो हम यहाँ पे अरेंज नहीं करने वाले हैं. देन सेकेंड टास्क वाज टू फाइंड आउट, सेकेंड टास्क इज टू फाइंड आउट n is the summation of frequency, that is sum of the frequency. N is here 50. Okay, thereafter you have to find out the cumulative frequency as you have determined in the case of discrete series. Similarly I have determined here cumulative frequency. Okay, now after finding the अब तक के तो जो सारे स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया था वैसे ही आपने एफ फाइंड करना है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. ओके, आफ्टर दिस यू नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ क्वार्टाइल्स. और क्वार्टाइल्स की पोजीशन भी आपने सिमिलर वे में फाइंड आउट करनी है. दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट फॉर आई मल्टीप्लाई एन डिवाइड 4. Okay, here I will be 1 when you are calculating quartile 1, I is equal to 2 when you are calculating quartile 2, I is equal to 3 when you are calculating quartile 3. Okay, in this way you have to find out the position of quartiles. Here I have, okay, here I have determined the position of the quartiles. Okay, as you can see here I have here this is the position of quartile 1. Here I is equal to 1, n was 50, so divide 4, so 12.5th position. Okay, after finding the position you have to find out the cumulative frequency just greater than this position. Okay, and then find out the corresponding class. Earlier आप क्या करते थे कि आप पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देखते थे और उससे उसका वेरिएबल देखते थे. बट यहाँ पे अब हमारा वेरिएबल किस फॉर्म में है? क्लास की फॉर्म में है. ओके, तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करनी है? क्लास. जैसे कि हेयर द पोजीशन ऑफ क्वार्टाइल 1 इज 12.5. ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग टेबल देखते हैं तो इस टेबल में आप देखिए कि विच फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन 12.5. दिस इज 14. ओके, नाउ द class corresponding to this is 12
14 to 21. So this is quartile 1 class. Okay, this is class for quartile 1. After finding out the class, अब इस क्लास में आप देखें दिस इज 14 to 21. ओके, हियर द लोअर वैल्यू इज 14 एंड हायर वैल्यू इज 21. ओके, तो हम बाद में इस लोअर वैल्यू को यूज़ करेंगे. जैसे कि आफ्टर डिटरमाइनिंग द पोजीशन आपने ये फॉर्मूला जो है यूज़ करना है फॉर कैलकुलेटिंग द क्वार्टाइल. इन दिस फॉर्मूला यू कैन सी दैट L is the lower position of the class. Suppose class is 14 to 21. So lower position is 14, मैंने अभी आपको बताया, और higher position क्या है 21. ओके, तो L क्या आ जाएगा यहाँ पे 14 जो लोअर लिमिट है. I इंटू N बाई 4 ये आप पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं. एंड हियर दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास. जो आपकी क्वार्टाइल क्लास आई है उससे पहले वाली जो क्लास है प्रीसीडिंग क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पर लिखनी है. ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, दिस इज द क्लास इंटरवल. ओके, सपोज क्लास इज 0 to 7, तो आप क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे? हायर जो लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर दोगे, डेट इज 7 minus 0, तो यू विल गेट 7. ओके, अगर क्लास है 14 to 21, तो आप कैसे निकालोगे? 21 minus 14. तो इस इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट एच. ओके, तो अगर हम क्वार्टाइल 1 के लिए सोल्व करते हैं, क्वार्टाइल 1 में हमारी जो पोजीशन आई थी क्वार्टाइल 1 की वो क्या आई थी? 12.5. ओके, नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 12.5 इज 14. तो 14 के कोरस्पोंडिंग क्लास क्या आ गई? 14 minus 21. तो अगर हम यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लिखते हैं जैसे L प्लस IN/4 डिवाइड F माइनस CF मल्टीप्लाई H. ठीक है, ये अभी हमने फॉर्मूला देखा था. अब इसके अंदर अगर आप देखें तो L क्या हो जाएगा? L विल बी 14. ओके, IN/4 आपको पता ही है. नाउ CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग दी क्वार्टाइल क्लास. अब क्वार्टाइल क्लास कौन सी है हमारी? 14 to 21. इससे पहले वाली क्लास कौन सी है? 7 to 14. अब ये 7 to 14 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7. तो हम यहाँ पर CF क्या रखेंगे? 7. ओके, और इसके नीचे क्या है? F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास. अब ये क्वार्टाइल क्लास कौन सी है हमारी? 14 to 21, ये वाली है ना. अब इसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7. तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे? 7. और H क्या है हमारा? क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल आप कैसे निकालोगे? 21 minus 14 दैट इज 7. तो आपने ये सब वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है और फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल 1. जैसे मैंने यहाँ पे सोल्व किया है, यू कैन सी दैट. ओके, जैसे हमने लोअर लिमिट क्या आई थी हमारी? 14, यही रखा है हमने. ओके, ये हमने पहले ही पोजीशन हमने कैलकुलेट की थी IN/4. नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास वाज 7. ओके, एंड दिस इज 7 दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, और 7 ही हमारी क्या आई थी? क्लास इंटरवल. तो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया क्वार्टाइल 1. ओके, सिमिलर टू दैट आप क्या कर सकते हो? क्वार्टाइल 2 फाइंड आउट कर सकते हो. क्वार्टाइल 2 में आपने क्या करना है? सबसे पहले क्वार्टाइल 2 की पोजीशन फाइंड आउट करनी है. आफ्टर फाइंडिंग द पोजीशन कोरस्पोंडिंग क्लास फाइंड आउट करनी है ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन दिस 25. तो यहाँ पर हमारी क्लास ये आई. इसके अंदर लोअर लिमिट क्या है क्लास की? 28. तो L की जगह हम क्या रखेंगे? 28. तो सिमिलरली अगर आप इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका क्वार्टाइल 2 क्या आएगा? 28. ओके, सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर क्वार्टाइल 3. ओके, तो जब आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज दी हो तो आपने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? सबसे पहले जो भी आपको डाटा दिया गया है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. देन यू हैव टू फाइंड आउट द समेशन F दैट इज सम ऑफ frequencies that is equal to n.
Thereafter you have to find out the position of all the quartiles, that is quartile 1, quartile 2, quartile 3. पोजीशन आपने फाइंड आउट कर ली i मल्टीप्लाई n बाई 4 फॉर्मूला से. ओके, पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, उस पोजीशन से जस्ट ग्रेटर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी जो कोरस्पोंडिंग क्लास है वो फाइंड आउट करनी है. दैट विल बी क्वार्टाइल क्लास. क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट करने के बाद आपने ये वाला जो फॉर्मूला है ये इसको यूज़ करके आपने फाइंड आउट करनी है क्वार्टाइल्स की वैल्यू. इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट quartile 1, 2 and 3, all the quartiles you can calculate. Thank you.